محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ اس منزل پر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے سخت ہیں۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ غیر موسمی بارش کی وجہ کسان زبردست مالی نقصان سے دوچار، بارش سے بھیگی ہوئی فصل سے کسان پریشان نہ ہو بلکہ اپنی دان رائس ملرز پر روانہ کریں، ضلع کلکٹر ہنمنتو۔ غیر موسمی بارش سے سیزنل بیماریوں کی روک تھام کے لیے صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھیں اور اسکول کے آغاز سے قبل اسکولز کے بنیادی مسائل کو بھی حل کیا جائے، زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ۔ میں بروز ہفتہ بمقام لیمرا گارڈن صبح 11 بجے تقریب عید میلاد و تحفظ بنت عوا کے حساس موضوع پر اہم اجلاس، مسلمانان سے شرکت کی اپیل۔ اس ماہ کی 8 اور 9 تاریخ کو اے ای کے تحریری امتحانات، امیدوار وقت مقررہ پر امتحانی مراکز پہنچے، ایڈیشنل کلکٹر بی چندر شیکھر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھیگے ہوئے دھانوں کو لے کر کسان پریشان نہ ہو، عہدیدار خریدے گئے دھان زیادہ سے زیادہ گاڑیوں کے ذریعے ملوں کو روانہ کریں، ملرز ان لوڈنگ فوری کراتے ہوئے کسانوں کا تعاون کریں، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کا بیان۔ کسانوں سے خریدے گئے دھان کو سینٹروں سے فوری طور پر رائس ملوں کو تیزی سے منتقل کریں، ضلع کلکٹر نے آئی کے پی دھان سینٹروں کے منتظمین کو حکم دیا۔ ضلع رورل حلقے کے بردی پور کیشا پور گاؤں میں لگائے گئے سرکاری دھان خریدی سینٹروں کا ایڈیشنل کلکٹر چندر شیکھر کے ہمراہ معائنہ کیا۔ بارش سے بھیگے دھان کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے حکم دیا کہ فوراً بوائلڈ ملوں کو منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ بھیگے دھان کے حمل و نقل میں کوئی مشکل پیش ہو رہی ہے کیا؟ انہوں نے منتظمین سے سوال کیا۔ کانٹا کیے ہوئے دھانوں کسانوں کی ادائیگی، اس دھانوں کے ٹرانسپورٹ مسئلے کے متعلق تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ کسانوں سے ملاقات کرتے ہوئے کسانوں کی مشکلات، سہولتوں کے متعلق جانکاری حاصل کی اور بتایا کہ بھیگے دھان کے متعلق کسانوں کو پریشان نہ ہونے کی حوصلہ افزائی کی۔ بتایا کہ حکومت کے مطابق خشک بھیگے دھان کی خریدی بھی عمل میں لانے کا تیقن دیا۔ اس حالات کے حساب سے کسانوں کی حفاظت، ان کے نقصان کی ذمہ داری کے لیے تعاون کرنے رائس ملرز عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ دھان کو تیزی سے منتقل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گاڑیوں کا انتظام عمل میں لانے اور ان لوڈنگ میں بھی تیزی لانے کی ملروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر کلکٹر کے ہمراہ ڈی ایس او چندر پرکاش، ڈی سی او سمہاچلم، سول سپلائی مینیجر جگدیش، نظام آباد آر ڈی او روی، رورل تحصیلدار انل دیگر بھی موجود تھے۔ కోసమే సార్ ఇప్పుడు రైతులు అడిగేది కొంచెమైనా రేపు లాస్ట్కి మిగతా ఎవరు కూడా 10 సంచుల్లో ఒక సంచి ఇట్లా పోయినా 10 సంచులు మంచి మాలే ఉంటుంది సార్। ఆ రైస్ మిల్ అంటే ఒకటి దీంట్లో కూడా ఒక 2%, 3% పోయినా కూడా 8% వస్తుంది అట్లా। అది రంగు మారింది, ఇది ఆరబెడితే చూడండి సార్ ఎంత పొట్టు రాదు, ఎండిందాక పొట్టు రాదు, ఎండితేనే పొట్టు బాగా వస్తుంది। سرکاری اسکولوں میں پہلے بنیادی مسائل کی یکسوئی عمل میں لائے، غیر موسمی بارش سے سیزنل بیماریوں کی روک تھام کے لیے صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھیں، زیڈ پی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ کا بیان۔ شہر کے ضلع پریشد زیڈ پی چیمبر میں طبی، تعلیم، خواتین، اطفال شعبوں پر زیڈ پی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ کی صدارت میں میٹنگ منعقد کی گئی۔ ضلع کے سرکاری اسکولوں کے حالات کے متعلق چیئرمین وٹھل راؤ نے ڈی ای او درگا پرساد سے تفصیلی معلومات حاصل کی۔
इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन ने बात करते हुए बताया कि स्कूलों में, स्कूल बिल्डिंगों में छोटे छोटे मरम्मत या दीगर मसाइल को स्कूलों के आगाज से पहले हमें स्कूलों के बुनियादी मसाइल की यकसुई करना चाहिए। गुज़िश्ता 10 दिनों से होने वाली गैर मौसमी बारिश से सीजनल बीमारियों के शुरू होने का खतरा लाख हो सकता है, इसलिए पीएचसी सेंटरों के अमले को होशियार होते हुए सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए पीएचसी सेंटरों में तरक्याती काम करने चाहिए। इसके बाद खवातीन तरक्याती शोबा व अतफाल तरक्याती शोबे की मीटिंग में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव की क़ियादत में इन्होंने बताया कि खवातीन को, हामिला खवातीन, जच्चाओं को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। इनको बेहतर ग़िज़ा दिए जाने में सभी का ताउन ज़रूरी है। खवातीन की हिफाजत के लिए आंगनवाड़ी CDPO ओहदेदार आंगनवाड़ी सेंटरों का मुसलसिल मुआयना करते हुए निगरानी रखें। इस मीटिंग में ZP CEO गोविंद, ZPTC मेंबर भारती, इंदलवई, वेलपुर ZPTC, कोटगिर ZPTC, दीगर अस्पताल अमला भी मौजूद था। విద్యా వైద్యం రెండు ఇంపార్టెంటే, రెండు కళ్ళలాగా ఈ ప్రభుత్వానికి. ఇటు విద్య ముఖ్యమే, ఇటు వైద్యం ముఖ్యమే. కాబట్టి క్షుణ్ణంగా వెళ్ళడం జరిగింది. ప్రతి దానికి అధికారులు, సంబంధిత అధికారులు మేము కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అటు డిఓ అయితేనేది, ఇటు డిఎంహెచ్ఓ అయితేనేది, జీజీఎస్ సూపరింటెండెంట్ అయితేనేది, బోధన సూపరింటెండెంట్ అయితేనేది, మరి రిప్లై కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మా డౌట్స్ కానీ, మా గౌరవ ZPTCల ఏదైనా డౌట్స్ కానీ క్లియర్ కూడా చేయడం జరిగింది. విద్యలో చూసుకుంటే అసలు భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. అవన్నీ ఇప్పుడు ఏదైతుందో గురుకులాలు కానీ, ఆదర్శ స్కూల్స్ కానీ, ఇటువంటివన్నీ చాలా పకడ్బందీగా మరి అలా చదువు చెప్పడం జరుగుతుంది. 6 में बरोज हफ्ता सुबह 11 बजे बामखाम लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल निजामाबाद जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लैक खान की निगरानी में तकरीब ईद मिलाद व तहफ़्फ़ुज़ बिन्ते हवा की अहम व हसास उन्वान पर अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद होगा, जिसमें मुफ्ती इस्माइल रुकने शोरा दारुल उलूम देवबंद व रुकने असम्बली मालेगांव महाराष्ट्र के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान के बसरत अफरोज़ खिताबात और तहफ़्फ़ुज़ बिन्ते हवा के उन्वान पर लाया अमल तैयार किया जाएगा। उम्मत मुस्लिमा से उमड़ते हुए सैलाब की तरह शिरकत की अपील। हाफिज मोहम्मद लैक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद के मुताबिक जमीयतुल उलमा हिंद जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम तक़रीब ईद मिलाद व तहफ़्फ़ुज़ बिन्ते हवा का बातारीख 6 मई बरोज़े हफ्ता बवक्त सुबह 11 बजे दिन बामखाम लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद पर अज़ीमुश्शान इनेकाद अमल में आ रहा है। इस अज़ीमुश्शान तक़रीब ईद मिलाद व तहफ़्फ़ुज़ बिन्ते हवा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल रुकने शोरा दारुल उलूम देवबंद व रुकने असम्बली मालेगांव महाराष्ट्र, मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना गयास अहमद रशादी सदर सफ़ा बैतुल माल ऑल इंडिया हैदराबाद, मौलाना जाफर पाशा आकिल हुस्साम अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना आंध्रा, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्रा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर नौजवान नस्ल बिलखुसूस दुख्तराने मिल्लत में बढ़ते हुए इर्तिदाद के फितने की रोकथाम पर मुहिम को खतियत दी जाएगी। तमाम मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। जमीयतुल उलमा हिंद जिला निजामाबाद की जानिब से 6 मई यानी कल बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे ता नमाज ज़ोहर एक तकरीब ईद मिलाद व तहफ़्फ़ुज़ बिन्ते हवा के उन्वान से एक इजलास मुनक़िद हो रहा है, जो कि आज के मौजूदा जो हालात है हमारी बहनों के दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र की गर्ज से इजलास रखा गया है, जिसमें मुल्क के माए नाज़ आलिम दीन रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब जो कि मालेगांव के रुकन असम्बली है, और इसी तरह हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब अलमारूफ सानी आकिल अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हैदराबाद, और इसी तरह मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना गयास अहमद रशादी साहब सदर सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद
और मुफ्ती महमूद जुबैर साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा, ये बैरून के मेहमान इकराम तशरीफ लाएंगे उलमा इकराम, और इसके अलावा मकामी उलमा इकराम और कायदीन इस अहम और हसास उन्वान के ऊपर खिताब फरमाएंगे। तमाम मिल्लत इस्लामिया के जिम्मेदार अफराद तक हमने दावतनामे पहुंचाए हैं। अगर किसी के पास दावतनामा नहीं पहुंचा तो हमारी इस वीडियो को, हमारी इस गुफ्तगू को दावतनामा समझकर तमाम लोग सहाफ़ी और दानिशवरान, उलमा और कायदीन और शहर के जो समाज के जितने जिम्मेदारान हैं सब उस प्रोग्राम में शरीक होकर इस मसले की हसासियत को महसूस करते हुए आप उसमें शरीक हों, ताकि इसकी रोकथाम के लिए हम कोई लाए अमल तैयार कर सके। मामूली झगड़े पर कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि 3 मफरूर। भीमगल एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भीमगल पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसमें आर्मूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि भीमगल मंडल के केरेपल्ली गांव में नप्थेलाल को बुरी तरह पीट कर खत्म कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नप्थेलाल ने इसके मकान के करीब सड़क पर काटी गई लकड़ियां रखने पर एक मुकामी वॉइस ग्रुप पर मैसेज भेजा, जिस पर गुस्से में लकड़ियां रखने वाले मंगैया, देवीचंद, अंबाली, ललिता और लवनिया ने मंगल की रात नप्थेलाल दिखाई देने पर उस पर बुरी तरह हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसकी बीवी ने उसको फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की बीवी नवीना की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करके भीमगल एसआई भरत रेड्डी की हिदायत पर तहकीकात की गई। मुलजिमीन मंगैया, देवीचंद को पकड़ लिया गया और रिमांड पर भेज दिया गया। लवनिया, ललिता, अंबाली मफरूर है। इन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक 4 व्हीलर गाड़ी की चोरी में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्मूर एसीपी प्रभाकर राव ने बताया कि चिन्नाकोडेल गांव के मधा और गंगाराम ने पेट्रोल बंक पर खड़ी गाड़ी 4 व्हीलर की चोरी की। गाड़ी मालिक राजेश्वर की शिकायत पर तहकीकात करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई, जिस पर तमाम ने इकबाल जुर्म किया। इनको रिमांड पर भेजा गया। इस मौके पर आर्मूर रूरल सीआई गोवर्धन, भीमगल एसआई भरत रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। भीमगल पुलिस ने 2 मामलात को हल कर लिया। మే 1వ తారీఖు నైటు భీమగల్ శివారు టువార్డ్స్ వేల్పూర్ పోయే దారికి హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ ఉన్నది. దాని ఓనరు రవి తనకి ఒక వెహికల్ ఉన్నది, తోఫా బండి, తుఫ్రాన్. ఆ వెహికల్ నైట్లో రెగ్యులర్గా తన యొక్క పెట్రోల్ బంకులో పెట్టుకుంటాడు. 1వ తారీఖు అర్ధరాత్రి, తెల్లారి 2వ తారీఖు ఈ వెహికల్ అనేది థెఫ్ట్ జరిగింది. థెఫ్ట్ జరిగినట్టుగా 2వ తారీఖున తను భీమగల్ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చేసేసి తన బండి అపహరణ గురించి దరఖాస్తు ఇస్తే ఆ దరఖాస్తు మేరకు మరి భీమగల్ ఎస్ఐ గారు శ్రీ రాజభరత్ రెడ్డి గారు ఇమ్మీడియట్గా ఆ దరఖాస్తు మేరకు ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసేసి మరి దాని గ్రేవ్ కేసు కాబట్టి ఇన్ఛార్జి సిఐ గారు బి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి యొక్క సూచనలు ఆదేశాల మేరకు టీం ఫామ్ చేసేసేసి బండిని ట్రేస్ చేయడం కొరకు టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఐ గారు వాళ్ళ టీము అమ్మానం వచ్చిన ప్రాంతాలలో వెహికల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా చెంగల్ అవుట్స్కట్స్లోనే ఎస్ఐ గారు టీము దీన్ని దొరకబట్టడం జరిగింది. వారి యొక్క టీముని అవలంబిస్తున్నాము. చెంగల్ వీళ్ళ పేర్లు చెబుతున్నాను. ఈ దొంగతనం ఎవరైతే అపహరణ చేశారో నేరస్తులు ఎత్తారి మధు, సన్ ఆఫ్ రాములు, ఏజ్ 20 years, క్యాస్ట్ వడ్డెరా, ఆక్యుపేషన్ ట్రాక్టర్ డ్రైవరు. ఈయన చిన్న కొడప్గాల్ చిన్న కొడప్గాలు విలేజ్, నిజాం సాగర్ మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా. ఇంకొక అతను మారుల గంగన్న అలియాస్ గంగన్న, సన్ ఆఫ్ నాగన్న, ఏజ్ 23 years, క్యాస్ట్ వడ్డెరా, లేబర్ వర్క్, చిన్న కొడప్గాల్ విలేజ్, నిజాం సాగర్ మండలం.
ఇద్దరితో కూడా ఒకటే లేదు అనమాట. అది భీమగల్ ఎస్ఐ గారు సిబ్బంది చకచక్యంగా వాళ్ళని దొరకబట్టినందుకు వాళ్ళని నా వంత కర్తవ్యంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. केशापुर नर्सरी की निगहदाश्त पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बरहमी जताई। नर्सरी की सही निगहदाश्त करते हुए खुश्क पौधों की जगह दूसरे पौधों को लगाने का मशवरा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रूरल हल्के के निजामाबाद मंडल केशापुर गांव में लगाए गए हरितहारम नर्सरी का जायजा लिया। नर्सरी की सही देखभाल न होने पर नाराजगी जाहिर की। केशापुर गांव में इन्होंने सरकारी धान खरीदी सेंटर का मुआयना करते हुए बाजू रहने वाली नर्सरी पहुंचकर सरकारी नर्सरी का जायजा लिया। नर्सरी में पौधों की सही निगहदाश्त न होने पर पौधों के लिए सही बीजों का इस्तेमाल न होने पर और डाले गए बीज से पौधे नशोनुमा न होने पर बरहमी जताई। ओहदेदारों और नर्सरी मुंतजमीन पर बरहमी जताई। इन्होंने नर्सरी मुंतजमीन से सवाल किया कि हरितहारम का आगाज ऐसा हो, अंजाम कैसा होगा। नर्सरी लगाए जाने और इसकी निगहदाश्त पर सही तवज्जो देने की ताकीद की। हरितहारम के इस प्रोग्राम को सही अमल में लाने, मुरझाए पौधों की जगह दूसरे पौधे लगाने पर जोर दिया। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, आरडीओ रवि, दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। बीआरएस के सीनियर कायद व तेलंगाना के जहदकार तारिक अंसारी कल 6 मई बरोज हफ्ता रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। रियासत तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से तारिक अंसारी 6 मई बरोज हफ्ता अपने ओहदे का जायजा लेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़ियादत हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में बीआरएस के सीनियर कायद तारिक अंसारी को रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन की हैसियत पर नामजद किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तकर्रुरनामा भी इनके हवाले खुसूसी तौर पर किया। क़ब्ल अज़ीज़ सरकारी ओहदा देने तक पार्टी की खिदमत हासिल करने के लिए उन्हें रियासती सेक्रेटरी की हैसियत से नामजद किया था। वो हमेशा रियासती सतह पर बेलौस अंदाज में पार्टी प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर ने मिस्टर तारिक अंसारी को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नामजद किया है। तारिक अंसारी मुमताज सियासतदान व कानूनदान खदीम मुजाहिदे तेलंगाना तहरीक अख्तर मोहिउद्दीन अंसारी मरहूम के फर्जंद हैं। इस महीने की 8-9 तारीख को एई के तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वक्त से पहले सेंटरों के पास पहुंच जाए, एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर का बयान। दीगर शोबों में मुआविन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एई पोस्ट के लिए TSPSC के जरिए इस महीने की 8-9 तारीखों में तहरीरी इम्तिहानात के इनेकाद के लिए जरूरी इक़दाम लिए गए हैं। इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपने वक्त मुकर्रर से पहले अपने इम्तिहानी मराकज़ पहुंचे। जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का बयान। इम्तिहानात के इंतजामात को लेकर मुशावरत इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार चीफ सुपरिटेंडेंट्स को इस महीने की 8 तारीख को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग AEE पोस्टों के लिए, 9 तारीख को मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पोस्टों के लिए तहरीरी इम्तिहान सुबह 10 बजे से 12:30 तक मुनक़िद किए जाने वाले पेपर 1 से ताल्लुक़ इम्तिहानात को सुबह 9:30 के अंदर इम्तिहानी सेंटर पर मौजूद रहने की ताकीद की गई और दोपहर 2:30 से 5 बजे तक पेपर सेकंड का इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। वक्त से पहले आने वाले अफराद को ही अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। जिले में इन इम्तिहानों के लिए 3 सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। आरमूर मंडल के चेपुर में, निजामाबाद के मानिक भंडार की काकतिया इंजीनियरिंग कॉलेज और निजामाबाद के नॉलेज पार्क के पास सेंटरों का क़याम किया गया। वीओस का एहतजाजी धरना आज 12वें रोज में दाखिल। एक अनोखे तरीके से एहतजाजी धरना वीओस के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत से मुतालिबा। नंदीपेट मंडल में IKP वीओस की गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल आज 12वें रोज में दाखिल। वीओस ने MPDO ऑफिस के सामने धरना दिया। इस मौके पर मुकामी बच्चों ने एहतजाज में इनके साथ बैठे हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर वीओस ने बात करते हुए बताया कि हम एक तवील अरसे से खवातीन महिला संगमों को ताउन देते आ रहे हैं। हुकूमत हमें रेगुलराइज करते हुए तनख्वाहों को देने के बजाय आरसी तौर पर कुछ दे रही और मुफ्त की खिदमत गुजारी करवा ले रही। हुकूमत हमें रेगुलराइज करते हुए हमारी खिदमत के बदले सिर्फ मुलाजिमों की तरह तनख्वाहें अदा करें और हमारे लिए हादिसाती तहफ़्फ़ुज़ बीमा की सहूलत अदा करें।
हमारे मुतालिबात की एकसुई किए जाने तक ये एहतजाज जारी रखने की बात बताई। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल वीओ संगम सदर सुजाता, सेक्रेटरी सायन्ना, दीगर भी मौजूद थे। సుజాత గత 20 సంవత్సరాలుగా మేము వివోఏగా పనిచేస్తున్నాము. అయినా కానీ మాకు ప్రభుత్వం నుండి ఏ ప్రభుత్వాలు గుర్తించలేవు. ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుర్తించింది. మాకు 3000 వేతనం ఇచ్చారు. కానీ అవి రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా సరిపోతలేవు. మాకు కనీస వేతనము 18,000 ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము. మళ్ళీ ఎస్హెచ్జి అకౌంటింగు, ఆన్లైన్ వర్కు, లక్పతి దీది, వివో అకౌంటింగు, వివో ఇది ట్రాన్సాక్షను, ప్రతి ఒక్క 50 రకాల పనులు మేము చేస్తున్నాము. మాకు వేతనము పెంచట్లేదు. వేతనము 18,000 మాకు రావాలని కోరుతున్నాము. ఐడి కార్డులు ఇప్పించాలని కోరుతున్నాము. యూనిఫాము, ఆరోగ్య భద్రత, కనీసం మాకు ప్రతి ఒక్క వివోఏకు 10 లక్షల బీమా మాకు కల్పించాలని కోరుతున్నాము. రాత్రనక పగలనక వేసినా కూడా మాకు అకస్మాత్తుగా ఏమన్నా అయినా కూడా మాకు ఏమీ ఇన్సూరెన్స్ లేవు, ఎలాంటి గుర్తింపు కూడా లేదు. मंडल वीओस जेपीएस के रास्ते पर मुकामी ग्राम पंचायत मजदूर भी गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल पर। गांव के सफाई मजदूरों को जियो 51 अमल में लाते हुए इनके साथ इंसाफ करने का ग्राम पंचायत मजदूरों का मुतालिबा। नंदीपेट मंडल में ग्राम पंचायत मजदूरों ने मंडल परिषद ऑफिस के सामने धरना दिया। इस मौके पर मजदूरों ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों से मुफ्त खिदमत करवा रही और अच्छी तनख्वाहें देने में कोताही कर रही। ग्राम पंचायत में काम करने वाले सफाई मजदूरों के लिए जियो 51 अमल में लाते हुए सफाई मजदूरों को रेगुलराइज करते हुए इनकी तनख्वाहों को बढ़ाने का पंचायत मजदूरों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया और अब तक पेंडिंग तनख्वाहों को फौरन जारी करें। ग्राम पंचायत में काम करने वाले मजदूर की मौत वाक़ई हो जाने पर इस जगह मरने वाले मजदूर के खानदान के फर्द को अपॉइंट करें। हमारे मसाइल की एकसुई किए जाने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत मजदूर संगम मंडल सदर एन प्रसाद, सेक्रेटरी नागा स्वामी, खायदीन CH नरसैया, सुधाकर, एजाज, चिन्नैया, दीगर भी मौजूद थे। చేస్తూ మాకు ట్రెజరీ ద్వారా నేరుగా ప్రభుత్వమే జీతాలు ఇచ్చే విధంగా చూసి అందరినీ ఆదుకోవాలని మేము పత్రికాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. గ్రామ పంచాయతీలో వివిధ కేటగిరీలో గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చాలన్నటువంటి వేతనాలతో పనిచేస్తూ ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా, ఎలాంటి సిబ్బందికి భద్రత లేకుండా తక్కువ వేతనంతో ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నాము. కానీ గత కొన్ని రోజులుగా ప్రభుత్వము జీవో నెంబర్ 51 మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి సిబ్బంది యొక్క ప్రాణాలతో చెలగాటం చేస్తూ ఏదైతే సిబ్బందికి ఇచ్చినటువంటి పనిలో డ్రైవర్లు కూడా అలాంటి నిర్లక్ష్యంతో చనిపోవడం కానీ జరుగుతుంది. ఏదైతే మా ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏంటంటే, ఏదైతే వేతనాలను చెల్లిస్తున్నారో అది గ్రామ పంచాయతీ నుంచి కాకుండా ట్రెజరీ ద్వారా చెల్లించాలి. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। गैर मौसमी बारिश की वजह किसान जबरदस्त माली नुकसान से दो चार। बारिश से भीगी हुई फसल से किसान परेशान न हो बल्कि अपनी धान राइस मिलर्स पर रवाना करें। जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। गैर मौसमी बारिश से सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए साफ सफाई का खुसूसी ख्याल रखें और स्कूल के आगाज से पब्लिक स्कूल्स के बुनियादी मसाइल को भी हल किया जाए। ZP चेयरमैन विठल राव। में बरोज हफ्ता बमकाम लिमरा गार्डन सुबह 11 बजे तकरीब ईद मिलाद व तहफ़्फ़ुज़ बिन्ते अव्वा के हसास मौजू पर अहम इजलास, मुसलमान से शिरकत की अपील। इस माह की
8 और 9 तारीख को AE के तहरीरी इम्तिहानात उम्मीदवार वक्त मुकर्ररा पर इम्तिहानी मराकज़ पहुंचे। एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।